The smaller molecules are again stored in the form of larger molecule, which has been called as an anabolism. So catabolism plus anabolism is totally which is called as a metabolism. ठीक है. So ये metabolism के अंदर बहुत सारे what to say waste product भी form होते हैं अपने body में. And ये waste product it is needed to be removed outside the body. ठीक है. So our kidney plays a very important role in excretion. So our kidney helps in the excretion of nitrogenous waste product from the body, है ना. अब ये नाइट्रोजन आया कहाँ से? The nitrogen has come from the protein which we eat, है ना. जो भी प्रोटीन हम खाते हैं वहां से नाइट्रोजन आता है. Because the protein is made up of carbon, hydrogen, oxygen as well as nitrogen. It's an organic compound. Okay. So there are different types of waste in our body. जैसे कि undigested food is been removed outside the body with the help of egestion. egestion से remove होता है. जबकि excretion से क्या होता है? जो भी digested है प्रोटीन जब digest होकर अमाइनो एसिड बन जाता है तो जो excess अमाइनो एसिड है वो remove होता है बॉडी के बाहर in the form of nitrogen waste. Correct है ना? Yes or no? There are many excretory organs along with the kidney. We are having lungs for excretion. We are having skin for excretion. Okay. So basically in this lesson, you have to learn in detail about the kidneys and all as a role of excretion. We know that जो भी ये है excretory waste है कौन कौन से हैं? वाटर है, गैसियस वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रोजन वेस्ट में 3 है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन है, मिनरल्स है, सॉल्ट ऑफ सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है. ऑल दीज आर बीन एक्सक्रीटेड आइदर थ्रू यूरिन और बाय फीसेस और बाय स्वेट. वी नो दैट कि अपना यूरिन का जो कलर है, व्हाट इज द कलर ऑफ द यूरिन? स्लाइटली येलो इन कंडीशन, है ना. यूरिन का कलर कैसा होता है? लाइट येलो कलर होता है. तो ये लाइट येलो कलर क्यों है यूरिन का कलर? बिकॉज ऑफ अ यूरोक्रोम पिगमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. कौन सा पिगमेंट? यूरोक्रोम पिगमेंट. फिर आप बोलोगे कि मैम ये यूरोक्रोम कहाँ से आया? तो यूरोक्रोम आता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हेमोग्लोबिन. ठीक है. हेमोग्लोबिन जब ब्रेकडाउन होता है तब उससे ये यूरोक्रोम पिगमेंट फॉर्म होता है जो कि यूरिन को एक कलर देता है. अगर आप बीटरूट ज्यादा खाते हो, ठीक है, अगर आप दिन में बहुत ज्यादा बीटरूट खाओगे तो यूरिन का कलर थोड़ा सा स्लाइटली रेडिश हो जाएगा. बिकॉज बीटरूट के अंदर जो पिगमेंट होता है ब्यूटेरिया वो भी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी के बाहर. अगर हम कुछ स्पाइसेस खा रहे हैं जैसे कि गार्लिक एंड ऑल खा रहे हैं तो जो लंग्स से भी वो वोलेटाइल सब्सटेंस दे आर बीन एक्सक्रीटेड थ्रू द लंग्स. अंडरस्टूड? I request all of you beta ki if you are having any point any doubt in any of the slides when I'm revising it, please interrupt me in between. ठीक है. So our body uses whatever amino acid is required. Excess of amino acid will be converted into the what? Ammonia. The first compound which is formed is called as a ammonia and the process is called as a deamination. है ना. जो भी एक्सेस अमाइनो एसिड है वो हमारे बॉडी में पहले लिवर में जाकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम डीअमाइनेशन बोलते हैं. ठीक है. सो डीअमाइनेशन के बाद द फर्स्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया. अब हमने अमोनिया का बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी देखा था कि अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है. अमोनिया को बॉडी के बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी का जरूरत है. Approximately 300 to 500 ml of water is required for removing just 1 gram of ammonia. है ना. So it's a too much amount. And again, it is highly toxic. It cannot be stored in the body for longer time. So ammonia can be excreted by those organisms जो लोग continuously fresh water में रहते हैं. So mostly ammonia has been excreted by those organisms जो लोग fresh water animals हैं. So these type of animals are called as a aminotellic animal and the process is called as a aminotelism. Aminotelism. The process of elimination of ammonia as a nitrogen waste is called as a aminotelism. Okay. Then we have seen all these things. Key examples you have to learn, examples you have to by heart, which can be asked in the exam or a 1 mark question. Write down 2 examples of aminotellic animals.
So you can write down about aquatic invertebrates, you can write down about bony fishes, you can write down about aquatic and larval amphibians. ठीक है? Yes. Then so you can see these aminotelic animals. You can see the first one is a tadpole, fish का larval form. Sorry, fish बोल रही हूँ, frog का larval form, that is aminotelism. Next come the ureotelism, जो हम उस कैटेगरी में आते हैं. Human beings are ureotelism. Now what happens in our liver? क्योंकि अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है, क्योंकि अमोनिया को बहुत पानी लगता है, तो हमारा लिवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है. तो अमोनिया टॉक्सिक था, यूरिया कम टॉक्सिक था, तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोल सकती हूँ, डिटॉक्सिफिकेशन भी बोल सकती हूँ. आई एम रिमूविंग द टॉक्सिसिटी ना, सो डिटॉक्सिफिकेशन, द प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज अ डिटॉक्सिफिकेशन. नेक्स्ट, यूरिया को कितना पानी का जरूरत पड़ता है, जस्ट अबाउट व्हाट टू से, it requires only just 50 ml of water for removing 1 gram of urea. It takes place with the help of a cycle, and that cycle is called as a ornithine cycle, या फिर उसको यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, या फिर उसको क्रेब एंड हैंसलेट साइकिल भी बोला जाता है. You can see this point. Ammonia is converted into urea by in the liver with the help of this ornithine cycle, or can also be called as a urea cycle, or it can also be called as a Krebs and Hanslet cycle. ठीक है? So 3 ATPs are used to produce one molecule of urea. ठीक है? So you can say the examples of ureotelism, cat, dog, many examples are there for this ureotelism. Next group of nitrogen waste is the uricotelism. Now uricotelism, uric acid का क्या ये है एडवांटेज है कि वो बहुत ही लीस्ट टॉक्सिक है, उसको बॉडी में बहुत देर तक स्टोर किया जा सकता है, और उसको बाहर निकालने के लिए, बॉडी के बाहर निकालने के लिए एकदम नॉमिनल वाटर का जरूरत है, जैसे कि जस्ट 10 ml of water for 1 gram of uric acid. So this has been excreted by those organisms which drink very very little amount of water, जैसे कि insects हो गए, birds हो गए, ये जो बहुत कम पानी पीते हैं, वो लोग मोस्टली यूरिक एसिड ही रिमूव करते हैं. और ये जो यूरिक एसिड होता है वो इनसोल्यूबल होने के वजह से, इनसोल्यूबल इन वाटर होने की वजह से, मोस्टली यूरिक एसिड का वेस्ट जो होता है वो यूरिन फॉर्म में नहीं होके सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म में होता है. इसलिए इंसेक्ट्स और बर्ड्स का जो एक्सक्रीशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होके सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है. ठीक है? So this was all about, and how it has been converted. Again, in the liver it has been converted. So ammonia into uric acid has been converted by a cycle or a pathway called as a inosinic acid pathway. Inosinic acid pathway, ये नाम याद रखना जरूरी है, again for a 1 mark question in the exam. There is one more group of animal called as a guanotelism. Now what these animals excrete? These animals excrete guanine. You have learned that you have learned the structure of DNA. In the structure of DNA you have seen the nitrogen bases, है ना? अब ये nitrogen bases में there are 4 nitrogen bases, जिसमें से guanine एक है. तो कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो लोग की गुआनिन एक्सक्रीट करते हैं, इसीलिए हम उसको गुआनोटेलिज्म कहते हैं. द एनिमल विल बी कॉल्ड एज गुआनोटेलिक. उसमें कौन से एनिमल्स आते हैं? स्पाइडर्स आते हैं, स्कॉर्पियंस आते हैं, एंड पेंगुइन्स आते हैं. गॉट इट? Now again you can take a screenshot of this page if you have taken already. Avoid it. If you have not taken, you can take it. So it's a comparative study of all the 3 nitrogen base at one glance. I hope you all have taken this. Shall we move forward? Yes, ma'am. Ajam. In addition to this, I just wanted to add up one more thing about the uricotelism. When I've taken the normal lecture, that time also I've told you one disease about this, कि अगर हम पानी कम पिएंगे तो क्या होगा, हमारा लिवर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि मुझे अब यूरिया नहीं बनाना है, मुझे क्या बनाना है, यूरिक एसिड बनाना है. सो इफ वी ड्रिंक वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, हमें तो कितना पानी पीना चाहिए, मॉडरेट पानी पीना चाहिए, ठीक है, बट अगर हम बहुत 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 कम पानी पी रहे हैं तो व्हाट हैपेंड, आवर लिवर विल ऑटोमेटिकली convert itself into making the
यूरिक एसिड, एंड दिस यूरिक एसिड विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन आवर जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगेगा, जिससे बीमारी होगी जिसका नाम है रूमेटॉइड, व्हिच इज कॉल्ड एज द आर्थराइटिस, है ना, arthritis, and which can also be called as a gout arthritis, which is very painful. Okay, then you have learned about creatinine also. What is creatinine? जब भी हम कोई muscular exercise करते हैं, कोई भी skeletal muscle का exercise करते हैं, तो उस वक्त creatinine produce होता है हमारे body में. Again, the creatinine is a waste which has been removed outside the body through urination. ठीक है? So let us learn more about this now. Yes, apart from this, we have already seen this marine bird also. अब ये जो marine bird है, वो तो सी वाटर में ही रहती है और उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, उसको ये सी वाटर ही पीना पड़ेगा, मतलब सॉल्टी वाटर ही पीना पड़ेगा, इसके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है. तो ऐसे एनिमल्स के पास क्या है? एडेप्टेशन टू लिव इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, है ना. ये जो मरीन बर्ड्स है, वो लोग को कोई ऑप्शन ही नहीं है, दे हैव टू ड्रिंक दिस सॉल्टी वाटर. तो वो कंडीशन में इनके पास क्या होता है? सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ठीक है, जिससे कि एक्सेसिव सॉल्ट जो है वो बॉडी के बाहर निकाला जा सकता है. तो यू कैन सी द सॉल्ट ग्लैंड्स, ठीक है, सॉल्ट ग्लैंड्स नियर द नॉस्ट्रल्स व्हिच इज रिमूविंग दिस एक्सेसिव सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, जिससे कि पीएच का बैलेंस हो. Now there are two categories of animals, osmoconformers and osmoregulators. Conformers क्या होते हैं? They are iso-osmotic to the surrounding, ठीक है. And regulators क्या होते हैं? They control the internal environment independent of the external environment. मतलब बाहर का कुछ भी रहने दो, वो लोग अंदर का रेगुलेट कर सकते हैं. जो लोग रेगुलेट कर सकते हैं बॉडी का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बाहर का टेम्परेचर, दे आर रेगुलेटर. जो लोग नहीं रेगुलेट कर सकते, दे आर कॉन्फर्मर्स. सो एग्जांपल्स भी आप देख लो, मरीन ऑर्गेनिज्म और कॉन्फर्मर्स, whereas fresh water and terrestrial organisms are regulators. Again, there are, depending upon the salt concentration, there are two types, stenohelin and the euryhelin. स्टीरोहेलिन मतलब क्या है? जो नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट को ये कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं. जबकि यूरीहेलिन क्या है? हैंडलिंग वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी. जो लोग वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटी को हैंडल कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, दे आर यूरीहेलाइन. जो लोग नैरो रेंज को हैंडल कर सकते हैं, दे आर स्टीनोहेलिन. गॉट इट? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, then we have seen a quick review of this evolution कि कैसे excretory system form हुआ. You have learned kingdom Animalia. You have seen in the kingdom Animalia, you must have learned in your 10th standard also. What this lesson is telling you about the stepwise evolution of the organism. तो सबसे पहला जो phylum है वो है Porifera. तो the diagram which you can see is an example of a Poriferan. तो पॉरीफेरन एक ऐसा एनिमल है जिसमें से हम देख रहे हैं कि कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम का शुरुआत हुआ था या इवोल्यूशन हुआ था. तो ये जो स्पॉन्जेस होते हैं, ये लोग अपने बॉडी का जो भी वेस्ट है वो डायरेक्टली ऑस्क्यूलम, जो आपको दिख रहा है ऊपर हेडिंग, ऑस्क्यूलम से ही बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर का जो भी एक्सक्रीशन है वो बाहर निकालते हैं. फिर उसके बाद स्टेप वाइज अगेन इवोल्यूशन हुआ. पॉरीफेरन के बाद सिलेंट्रेट्स आए, फिर उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थेस आए, फिर एस्केलेहेल्मिन्थेस आए, फिर ऐसे ऐसे स्टेप वाइज इवोल्यूशन होते गया और साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी इवोल्यूशन होते गया. तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट फाइलम के जो एनिमल्स थे, उनके पास नेफ्रिडियोपोर्स आ गया. नेफ्रिडियोपोर्स एज अ ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन. So let us describe this nephridia into two types. Proto matlab primitive and meta matlab advanced one. So protonephridias are the if you say about the platyhelminthes, example planaria. Planaria को देखो आप, ये प्लेनेरिया के पास देखो ऐसे फ्लेम लाइक सेल्स, फ्लेम बल्ब लाइक या फ्लेम सेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो कि यू कैन सी नाउ हियर आल्सो फ्लेम सेल्स. ये सब प्रोटोनेफ्रिडिया है, प्रिमिटिव नेफ्रिडियास, ठीक है, फ्लेम सेल्स. एग्जांपल्स प्लैटीहेल्मिन्थेस. दे आर फाउंड इन द रोटिफर्स, सम annelids and amphioxus.
मेटानेफ्रेडिया एडवांस वन, नेफ्रेडिया थोड़ा और एडवांस हो गया, अब क्या बन गया उसके पास, नेफ्रोस्टोम्स आ गया, नेफ्रेडियोपोर्स आ गया. लेट मी शो यू दिस, दिस इज द नेफ्रोस्टोम एंड दिस इज द नेफ्रेडियोपोर. स्टोम एंड पोर, देखो थोड़ा और एडवांस हो गया, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है. देन उसके बाद वापस कॉम्प्लिकेशंस आ गए जब हम ऑर्थ्रोपोडा में गए. अब ये यहाँ तक तो क्या था, नेफ्रोस्टोम था, नेफ्रिडियोपोर था, अब क्या बन गया, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल बन गया. यू कैन सी मैल्फिजियन ट्यूब्यूल बन गया. फिर ये मैल्फिजियन ट्यूब्यूल और एडवांस होगा तो क्या बन जाएगा, what it will be form, it will be forming the kidney, and kidney will be made up of nephrons. So let us learn about the human excretory system or the urinary system. So human excretory system or the urinary system में क्या क्या होता है, we are having 2 kidneys, है ना, 1 kidney is extra. Yes, we are having 2 kidneys. Then what? Tell me. Tell me fast. और क्या है? Urinary bladder. Directly urinary bladder बेटा. हाँ, डायरेक्टली यूरिनरी ब्लैडर पे आ जाओगे, बीच में कुछ नहीं है. यूरेटर, pair of kidney, pair of ureter, single urinary bladder and a single urethra. ठीक है, ऐसे बोलना है आपको सीक्वेंस में. सो किडनी कौन से शेप का है, बीन शेप का है. उसका साइज आप देख सकते हो, इट इज रेट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन, मतलब इट इज प्रेजेंट बिहाइंड अवर पेरिटोनियम. मेल में वेट थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा ग्राम्स में कम होता है. आउटर साइड कॉन्वेक्स होता है, इनर साइड कॉनकेव होता है. वहां पे एक नॉच होता है जिसे हम हाइलम या फिर हाइलस भी कहते हैं. और किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं विच आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. फिर यूरेटर, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है. किधर ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है. ठीक है, इसका काम क्या है, बैक फ्लो को नहीं करने देता यूरिन को. ठीक है, urinary bladder, it's a hollow muscular organ. Okay, you can see that there is a trigone shape. Trigone, see the labeling, trigone, triangular part, is this part is called as a trigone. So at the base of the urinary bladder there is a small inverted triangular area which is called as a trigone, and the bladder will open into the urethra, है ना. bladder किधर open करेगा, urethra में. ब्लैडर का खास बात क्या है कि उसके अंदर आपको मसल्स के बारे में पढ़ना है. सो इट इज लाइंड बाय अ डिट्रूसर मसल. ठीक है, एंड साथ में इट इज हैविंग अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम कॉल्ड एज अ ट्रांजिशनल एपिथेलियम. इसके पास एक डिट्रूसर मसल है और ट्रांजिशनल एपिथेलियम है. ये दोनों भी चीज, मतलब कि डिट्रूसर मसल एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम दोनों भी उसको एक्सपांशन में मदद करते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लैडर में मदद करते हैं जब भी टेम्पररी यूरिन स्टोर होता है इसके अंदर. Okay. Then we have seen the topic as mixed urination. Mixed urination का मतलब क्या होता है, act of urination को हम mixed urination बोलते हैं. ठीक है, removing the urine is called as a mixed urination. Our bladder can store how much urine, 500 to 1 liter. So let us send an approximate figure as average of 700 ml. तो उतना अपना urinary bladder stretch हो सकता है ना. And stretching के वजह से हमारा इम्पल्स जनरेट होता है, मैसेज जनरेट होता है स्पाइनल कॉर्ड को, और देन वी विल फील द अर्ज ऑफ यूरिनेशन. तो दैट अर्ज ऑफ यूरिनेशन इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड यूरिनेशन. ठीक है, सो मिक्स्ड यूरिनेशन रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जनरेट होता है जब हमें यूरिनेशन के लिए यूरिन कॉल आता है तभी. ओके, जब भी मिक्स्ड यूरिनेशन होगा तभी क्या होगा, ब्लैडर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे and the muscles of the internal sphincter relaxes. So external sphincter receive impulse and from the conscious center of the brain and relaxes. ठीक है,
So this lead to the elimination of urine from the bladder. तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? Mixed urination. So इससे आपको पूरा क्या समझ में आता है कि it is wholly controlled by our spinal cord and brain. हमारा brain and spinal cord control करता है इसे. यूरेथ्रा की बात करते हैं. तो यूरेथ्रा ओपनिंग है जिससे कि यूरिन बॉडी के बाहर निकाला जाता है. यूरेथ्रा में स्फिंक्टर्स होते हैं. सो इंटरनल है, एक्सटर्नल है. इंटरनल स्फिंक्टर इनवॉलेंट्री है, मतलब अपने इच्छा अनुसार नहीं है, जबकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री है. ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेटेड मसल से बना है. इसके साथ साथ तो लेट अस सी द फंक्शन ऑफ किडनी व्हिच कैन बी अगेन एज अ 2 मार्क क्वेश्चन इन द एग्जाम. ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी. तो किडनी का काम क्या है? नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना, टॉक्सिक को रिमूव करना बॉडी से, बॉडी को होमियोस्टेसिस पे लाना, पीएच को मेंटेन करना. इसके साथ साथ किडनी 2 हार्मोन्स भी बनाता है, कैल्सिट्रियोल एंड रेनिन. कैल्सिट्रियोल कैल्शियम का कंट्रोल करता है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म करता है बॉडी में. और रेनिन के बारे में तो अभी आप रैस सिस्टम पढ़ोगे ही आगे, है ना, हमने पढ़ा है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. And erythropoietin is a hormone which is secreted by the kidney, which helps in the production of RBC. Understood this much, all of you? Yes, ma'am. Yes, miss. So ureter का काम है ब्लैडर तक यूरिन पहुंचाना, ब्लैडर का काम है स्टोर करना, यूरेथ्रा का काम है मिक्स्ड यूरिनेशन करना. अच्छा, अगर हम यूरेथ्रा और मेल और फीमेल के बारे में बात करेंगे तो फीमेल का यूरेथ्रा इज जस्ट 4 सेंटीमीटर, बट मेल का यूरेथ्रा इज 20 सेंटीमीटर. ऐसा क्यों है? बिकॉज नेक्स्ट ईयर आप जब 12th में जाओगे तो यू विल बी लर्निंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल के अंदर क्या होता है कि पेनिस के अंदर ही यूरेथ्रा होता है. ठीक है, सो दैट मीन्स इट्स अ यूरिनोजेनाइटल डक्ट. यूरिनो मतलब यूरिन भी पास करता है, जेनाइटल मतलब स्पर्म भी इजैकुलेट करता है, इसलिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं यूरेथ्रा को मेल में. चलो नाउ लेट अस लर्न द हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी. हिस्टोलॉजी मतलब एलएस सेक्शन, मतलब जब हम किडनी को कट करके देखेंगे तो हमें कैसा क्या क्या चीजें नजर आएंगी. तो किडनी को कट करने के पहले लेट अस लर्न द कवरिंग ऑफ द किडनी. तो किडनी के ऊपर 3 लेयर ऑफ कवरिंग है, 3 लेयर का कवरिंग है. सबसे बाहर की कवरिंग को बोला जाएगा रीनल फैसिया, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है. ऑब्वियसली आउटर मोस्ट है तो प्रोटेक्शन करेगा, एंकरिंग का काम करेगा. मिडिल लेयर जो है वो फैट के टिश्यू से बनना है, तो फैट को क्या बोला जाता है? एडिपोस. तो इसके लिए हमने इसका नाम दे दिया एडिपोस कैप्सूल, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा. जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसको बोला जाएगा रीनल, मतलब किडनी का कैप्सूल मतलब कवरिंग, रीनल का एक्चुअल कवरिंग, जो कि स्मूथ ट्रांसपेरेंट है, जो कि इन्फेक्शन को अंदर नहीं आने देगा किडनी के. ठीक है, तो ये हो गया किडनी के 3 लेयर्स. अब हम किडनी को अगर अंदर से देखेंगे तो वी कैन सी दैट किडनी में 2 रीजन्स नजर आएंगे. outer region called as cortex and inner region called as medulla. outer region जो है वो रेड कलर का है, ग्रैन्युलर है, मतलब ऐसा दानेदार दिखता है. and this point is very important, those who want to appear for the NEET exam also, this point is very important. रीनल कॉर्टेक्स में क्या क्या चीज पाई जाती है? तो रीनल कॉर्टेक्स में होता है मैल्फिजियन बॉडी एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड ब्लड वेसल्स. प्लीज ये नोट डाउन करके रखो फॉर नीट एग्जाम आल्सो. सो कॉर्टेक्स में होता है मैल्फिजियन बॉडी एंड हमने जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पढ़े ना नेफ्रॉन के, वो सब कॉर्टेक्स में होता है. मेडुला क्या है? अंदर वाला रीजन है जो पेल रेड कलर का, लाइट येलो कलर का है, और उसमें स्ट्रेशंस नजर आते हैं, बैंड्स नजर आते हैं. क्यों बैंड्स नजर आते हैं? क्योंकि उसमें रीनल पिरामिड्स होता है. यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे लूप ऑफ हेनले पाया जाता है एंड कलेक्टिंग डक्ट पाया जाता है. Now we have already seen what is column of Bertini. The extension of cortex into medulla is called as a column of Bertini. The narrow tip of pyramid is called as a renal papillae.
Renal papillae will open into the minor calyx. Minor calyx will open into major calyx and major calyx will open into the pelvis. है ना? Pelvis को sinus भी कहा जाता है. और pelvis किधर open होगा? Ureter में, through the hilus. Yes or no? Yes, madam. Okay, so you must have drawn this diagram also in your notebook. How much you Yes. have to draw the Ma'am. pyramids? You have to draw 8 pyramids. 8 count करके बनाना रहता है. चलो नेफ्रॉन के बारे में बात करते हैं. We are saying that कि किडनी के अंदर एक्चुअल में काम कौन करता है? नेफ्रॉन. इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन को एक और नाम से जाना जाता है. नेफ्रॉन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज यूरिनिफरस ट्यूब्यूल. यूरिनिफरस ट्यूब्यूल क्यों बोला जाता है? यूरिनिफरस क्यों? क्योंकि यूरिन बनाने में मदद करता है. ट्यूब्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है. ठीक है. सो नेफ्रॉन के अंदर कई रीजन्स हैं. जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम मैल्फिजियन बॉडी कहते हैं. फिर आता है पीसीटी, फिर आता है लूप ऑफ एनले, फिर आता है डीसीटी, फिर आता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. ठीक है. सो यू कैन सी ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं? मैल्फिजियन बॉडी. मैल्फिजियन बॉडी. फिर आता है पीसीटी, देन लूप ऑफ एनले, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट. सो लेट अस फर्स्ट सी द मैल्फिजियन बॉडी. है ना? तो मैं इसी डायग्राम से बता दूं आपको. सो मैल्फिजियन बॉडी में हमने क्या क्या पढ़ा था कि मैल्फिजियन बॉडी भी 2 हिस्सों से बना है. Bowman's capsule and glomerulus. Bowman's capsule and glomerulus. Bowman's capsule जो है वो क्या है? It's a cup-like structure. आप देख सकते हैं उसमें 2 लेयर है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? पैराइटल लेयर. इनर लेयर को क्या बोलते हैं? विसरल लेयर. इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस है उसे हम यूरिनरी स्पेस या फिर कैप्सुलर स्पेस भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, विसरल लेयर के अंदर कुछ सेल्स ने अपने शेप का मॉडिफाई कर दिया है. एंड दिस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ पोडोसाइट्स. मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ पोडोसाइट्स. पोडोसाइट्स के बीच बीच में देयर आर सम पोर्स प्रेजेंट. छोटे छोटे होल प्रेजेंट है जिसको फिल्ट्रेशन स्लिट कहा जाता है. यू कैन सी दिस एरो मार्क. दिस आर द फिल्ट्रेशन स्लिट. स्लिट मतलब ओपनिंग. So this was all about the Bowman's capsule. क्या याद रखना है आपको? कप लाइक स्ट्रक्चर, डबल लेयर, आउटर पैराइटल, इनर विसरल. है ना? पैराइटल और विसरल के बीच में जो स्पेस है कैप्सुलर स्पेस और यूरिनरी स्पेस. विसरल लेयर में पोडोसाइट्स एंड बिटवीन द पोडोसाइट्स फिल्ट्रेशन स्लिट. नेक्स्ट इज दिस ग्लोमेरुलस. Glomerulus is a tuft of capillaries or a bunch of capillaries made up of afferent arteriole and the efferent arteriole. Afferent is thick, efferent is thin. ठीक है. थिक और थिन होने की वजह से क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है जो कि हेल्प करता है इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. यस और नो? डन? Yes, ma'am. Okay. And this is the blood flow to the kidney. So renal artery will divide to form arteriole. Arteriole will first form afferent arteriole. It will form the capillaries, glomerular capillaries. Then it will come out in the form of efferent arteriole, which will again form the peritubular capillaries, then renal vein, venule, and the renal vein. So this was the diagram. You must have drawn this diagram also in your notebook. So this is what I've just now explained you about the Bowman's capsule. So filtration slit, all these things. Now, where the Bowman's capsule ends, there is a starting of proximal convoluted tubule. Between them, there is a narrow structure which has been called as a neck. Lumen
of neck is called as a urinary pole also. ठीक है, जहां पे बोमैन्स कैप्सूल एंड होता है और जहां से प्रॉक्सिमल स्टार्ट होता है, उन दोनों के बीच में एक नैरो रीजन है जिसे हम नेक कहते हैं, और नेक का जो लुमेन है, जो गैप है, जो स्पेस है, उसे हम यूरिनरी पूल कहते हैं. सो पीसीटी के बारे में बात करते हैं. वो क्यूबॉइडल सेल से बना है, उसमें माइक्रोविलाइज हैं जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है. ये बहुत ही कॉइल्ड है, सबसे पहले आता है इसलिए प्रॉक्सिमल है, कॉइल्ड है इसलिए कॉन्वोल्यूटेड है, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसका काम क्या है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना. उसके बाद एक लूप लाइक स्ट्रक्चर है, यू शेप स्ट्रक्चर, जिसके अंदर दो लिम्स है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब. डिसेंडिंग इज थिन वॉल्ड and permeable to water, which is made up of simple squamous epithelium, and ascending is thick walled, impermeable to water but permeable to salt. लूप ऑफ हेनले के आगे बाजू में क्या है? कैपिलरीज प्रेजेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं. क्या कहते हैं? वासा रेक्टा. ये हमने पढ़ा भी था, वासा रेक्टा हेल्प्स इन द काउंटर करंट मैकेनिज्म. ठीक है, so this was that. Then DCT, distal convoluted tubule, जो कि ट्यूबुलर सिक्रीशन में मदद करता है, जिसको हम ऑगमेंटेशन भी कहते हैं. फिर वो किस में जुड़ेगा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ेगा. बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं? डक्ट ऑफ बेलेनी बनाते हैं. डक्ट ऑफ बेलेनी. Now you have to learn two types of nephrons, as the cortical nephron and the juxtamedullary nephron. कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, यस, जो कि बहुत ही कम मेडुला तक आता है. एंड जुक्स्टा में लूप ऑफ हेनले काफी बड़ा होता है, जो मेडुला तक आता है. यस, सो यू कैन सी द डायग्राम, cortical and juxta. Then we have to learn about the juxtaglomerular apparatus. क्या हमने बताया इसमें कि जो एफरेंट आर्टेरियोल है, वहां पे कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं juxtaglomerular सेल्स, जेजी सेल्स बोलते हैं. ठीक है, एंड डीसीटी जो है वो बहुत ही पास है. किसके पास है? एफरेंट आर्टेरियोल के काफी पास है, जिसके वजह से एक रीजन फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा. ठीक है, क्या बताया हमने? एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर स्पेशल सेल्स है जिसका नाम है जेजी सेल्स. देन और क्या बताया मैंने? डीसीटी और एफरेंट आर्टेरियोल बहुत ही पास होते हैं सेम नेफ्रॉन के, जिसके वजह से एक रीजन फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा. सो मैक्यूला डेंसा एंड जेजी सेल दोनों मिलके जेजीए बनते हैं, दैट इज जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus बनते हैं, जो कि रेनिन नाम का एंजाइम बनाते हैं, which helps in the maintaining the blood pressure. Okay, so let us understand the steps of urine formation. There are three steps of urine formation: ultrafiltration, selective reabsorption, and the tubular segregation. Ultrafiltration को glomerular filtration भी कहते हैं. The filtration is done under the high pressure. ये प्रेशर आता कहाँ से है? Due to the difference in the diameter of efferent and efferent arteriole. Which pressure is formed? Hydrostatic pressure, or you can say glomerular hydrostatic pressure, which has been recorded to be as 55 mm of Hg. ब्लड का खुद का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 30 mm of Hg, which is having a pressure on the capsule about 15 mm of Hg. So if you want to find out the net effective filtrate pressure, so that comes to about 10 mm of Hg. इतने प्रेशर से ब्लड फिल्टर होता है. ठीक है, yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So about 600 ml of blood passes through each kidney. दोनों किडनी मतलब
दोनों किडनी को लेंगे तो 1200 ml पर मिनट. सो लेट अस फाइंड आउट द रेट. तो अगर हम रेट देखेंगे तो how much it is? 125 ml per minute, or we can say that 180 liters of filtrate is formed per day. So 180 liter is a big amount, है ना, बहुत बड़ा ये दिस थिंग है. सो इतना तो यूरिन हम यूरिनेट नहीं करते हैं. तो दैट प्रूव्स दैट कि 180 लीटर्स में से सिर्फ अगर हम 2 लीटर्स यूरिन यूरिनेट करते हैं तो बाकी का 178 लीटर्स का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. जो कि नेक्स्ट स्टेप होगा, दैट इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. सो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में कौन मदद करता है? हमारा पीसीटी, हमारा लूप ऑफ हेनले, ये सब मदद करते हैं. सो पीसीटी का सबसे बड़ा रोल है इन सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि पीसीटी हाईली कॉइल्ड है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है. उसमें माइक्रोविलाए है. ठीक है. सो आइदर बाय एक्टिव मेथड और बाय पैसिव मेथड द सब्सटेंसेस आर बीन एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी. सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस. एज हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अपना बॉडी यूरिन में नहीं जाने देगा और उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए उसको हाई थ्रेशोल्ड कैटेगरी में रखा गया है. एंड लो थ्रेशोल्ड मतलब कि चलता है, यूरिन में चला भी गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको एब्जॉर्ब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. दैट इज व्हाट इज द कंडीशन. सो हाई थ्रेशोल्ड में कौन आते हैं? ग्लूकोज आते हैं, अमाइनो एसिड आता है, विटामिन सी आता है, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ऑल दिस थिंग्स कम. Whereas low threshold में water, sulfate, nitrates are been there. So 99% of the thing has been absorbed. ठीक है. Next step is tubular secretion. Tubular secretion क्या होता है कि जो भी escaped blood है, escaped blood in the peritubular capillary, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ रहा है, ब्लड एफरेंट से इफरेंट में जा रहा है. यू कैन जस्ट इमेजिन द प्रेशर. अगर 1 मिनट में 600 ml ऑफ ब्लड फिल्टर हो रहा है तो यू कैन जस्ट इमेजिन द स्पीड एट व्हाट स्पीड इट इज कमिंग एंड गोइंग आउट. सो जब इतना ज्यादा स्पीड है तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांसेस ऑफ सम ऑफ द ब्लड एस्केपिंग इनसाइड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जिसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया है. तो ये जो एस्केप्ड ब्लड है, जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज हैं, ठीक है, इसको वापस नेफ्रॉन के ट्यूब में डाला जाता है फ्रॉम पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, है ना. सो ये काम कौन करता है? डीसीटी करता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल करता है. तो जो भी इम्प्यूरिटीज यहाँ वहां पेरिट्यूबुलर में छुपी हुई है उसको वापस इस ट्यूब में डाला जाता है ताकि यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाए. समझ में आया नाम? Yes, madam. Okay. So you have to properly put the arrow mark for showing the tubular secretion as well as for showing the selective reabsorption. So this is a perfect diagram showing both the things at one thing. So urine ka concentration, you know that. Concentration of urine, yes, we know that कि we always excrete concentrated urine. का concentrated मतलब hypertonic urine. Hypertonic urine मतलब जिसमें water कम है और salt ज्यादा है. तो ये osmolarity कैसे होता है? By counter current mechanism. You can see this counter current mechanism. Counter current mechanism is done with the help of vasa recta and nephron. This diagram has been given and this diagram is self-explanatory. इसको काउंटर करंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उसका ऑस्मोलैरिटी भी कम ज्यादा होते जा रहा है. इफ यू सी दिस नेफ्रॉन के अंदर डिसेंडिंग लिम्ब से पानी बाहर जा रहा है, तो पानी बाहर जा रहा है तो इसको ऑस्मोलैरिटी बढ़ के 1000, पहले 600 हुआ, फिर 800 हुआ, फिर 1000 हो गया, फिर 1200 हो गया. वही वासा रेक्टा में क्या हो रहा है? ये जो पानी बाहर जा रहा है, इस पानी को कौन ले रहा है? ये वासा रेक्टा ले रहा है. तो इसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है? कम होते जा रही है. आप देख सकते हैं कम होते जा रही है. 1000 से 800 हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में देखो 600 हो गई, फिर 300 हो गई.
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो पानी बाहर आता है वो वासा रेक्टा लेता है, यहाँ से जो सॉल्ट बाहर आ रहा है उसको वासा रेक्टा लेता है। तो एक में ऑस्मोलैरिटी कम होते जाएगी, दूसरे में ऑस्मोलैरिटी बढ़ते जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसके वजह से क्या होता है, पीएच का बैलेंस होता है, pH balance is maintained in our body. Understood? साथ में काउंटर करंट मैकेनिज्म में वाटर का तो बहुत बड़ा रोल है ही, साथ में यूरिया का भी बहुत बड़ा रोल है। यूरिया ऑल्सो हेल्प्स इन द काउंटर करंट मैकेनिज्म. It also maintains the osmosis of our body. ठीक है, so you can just go through. So urea also helps in this thing, therefore that is called as a urea cycle. Urea एक बार अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, again to maintain the pH of the body, to maintain the osmolarity of the body. So that is called as a urea recycling. So now composition of urine. Now, about urochrome pigment we have already seen. Let us see about the concentration of urine, renin-angiotensin mechanism. I will show you this part only. Yes. So whenever the body's pressure is decreased, ठीक है, जब भी body का pressure decrease होगा, yes, somebody is telling something. Anybody wants to ask something? Sakshi? Yes, madam. गीता? Yes, madam. हाँ बोलो, कुछ पूछना है बेटा? नहीं मैम. अच्छा, सो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या है बेटा, कि जब भी हमारा प्रेशर कम होगा बॉडी का तो क्या होगा, हमारा जो जेजी सेल्स है वो रेनिन रिलीज करेगा। अब ये रेनिन क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट द एंजियोटेंसिनोजन जो कि हमारा लिवर बनाता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में बदल जाएगा, अगेन विद द हेल्प ऑफ अनदर हार्मोन एंजाइम। ठीक है ना, ये क्यों 2 में कन्वर्ट हुआ है, 2 में कन्वर्ट होने से क्या होगा, एल्डोस्टेरोन बनेगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन बनेगा, और एल्डोस्टेरोन के बनते ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम हुआ था, ब्लड प्रेशर कम हुआ था, अब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए क्या बना है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन बना है। समझ में आ गया? सो दिस इज फॉर द पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग कैसे होगा, तो ये जो प्रेशर इंक्रीज हो गया है उसको डिक्रीज कैसे किया जाएगा, तो अपना हार्ट इसमें मदद करेगा। अपना हार्ट भी एक हार्मोन बनाता है, ठीक है, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर जिसको बोलते हैं हम, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, अपना हार्ट भी एक हार्मोन बनाता है जिससे कि क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नाट्रियूरेसिस कहते हैं, नाट्रियूरेसिस। ठीक है, so this was all about, एक मिनट, sorry, so kidney we have discussed earlier also. The kidney helps in the synthesis of calcitriol, which is helping in the active form of vitamin D, which is needed for the absorption of calcium. Now apart from this, I just wanted to say one more topic which has been left behind, that is about the ADH. So this was heart, this thing. ADH के बारे में भी मिस आउट हो गया है, वो मैं बता दूं आपको। ADH एक हार्मोन है जो कौन बनाता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है, हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, हमारे ब्रेन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन बनाता है, ADH। अच्छा, अब ये ADH हार्मोन का काम क्या है
कि इट एब्जॉर्ब्स मोर एंड मोर वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, जिसके वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। अच्छा, अगर ये एडीएच हार्मोन नहीं रहा तो क्या होगा, हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डीसीटी से वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा और यूरिन कैसा होगा, बहुत ज्यादा पानी वाला यूरिन होगा, मतलब हाइपोटोनिक यूरिन होगा। तो ये कंडीशन अच्छा नहीं है ना, क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर कंजर्व नहीं हो पा रहा है। अगर एडीएच नहीं होगा तो वाटर कंजर्व नहीं हो पाएगा, जो एक बीमारी का संकेत है। विच बीमारी का संकेत, इट इज द डायबिटिस इंसिपिडस, ठीक है। So person suffering from diabetes insipidus does not produces the ADH hormone, and because it cannot produce the ADH hormone, the water cannot be absorbed in the body. पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा बॉडी में। तो ऐसे पेशेंट का सिम्टम्स क्या क्या नजर आएगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार यूरिनेशन को जाएंगे, और फ्रीक्वेंट थर्स्ट, मतलब बार बार प्यास लगेगी, बार बार यूरिनेशन, ठीक है। सो दैट इज अ साइन एंड सिम्टम ऑफ डायबिटिस इंसिपिडस। Understood? Yes or no? Yes, madam. Yes, ma'am. There is one more diabetes called as a diabetes mellitus. Diabetes mellitus में क्या होता है, यूरिन में शुगर पाया जाता है, यूरिन में शुगर, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ पैनक्रियाज, है ना। अगर पैनक्रिया इंसुलिन नहीं बना पा रहा है तो शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, और ये जो एक्स्ट्रा शुगर है वो यूरिन में नजर आएगा, ठीक है। देखो, आप जब भी बीमार पड़ते हो बेटा, तो ब्लड टेस्ट तो एक है ही माध्यम चेक करने का, पर साथ में यूरिन एनालिसिस से भी हमें अपने बॉडी के बहुत सारी चीजें पता चल सकती है। हाँ, यूरिन से कैसे पता चलेगी कि कौन सा चीज अपने बॉडी में मेटाबोलाइज हो रहा है और कौन सा चीज मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, ये सब हमें यूरिन सैंपल से पता चल सकता है ना, कि हमारे बॉडी में कौन सा चीज एक्सेस है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में अगर पता करना है तो वी कैन जस्ट गो फॉर अ यूरिन टेस्ट। अगर यूरिन टेस्ट में ग्लूकोज ज्यादा दिख रहा है, मतलब कि हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है बराबर से, समझ में आया। सो द यूरिन टॉक्स about our body ki what is happening inside our body, and no doubt the blood also. So this was all about, and the last topic of this particular lesson is the excretion with the help of other organs like the skin. So our skin has two glands, sweat gland and the sebaceous gland, okay. Sweat, just give me 2 minutes beta, read this part.
So yes. So sweat gland, they are abundant in our palm and the facial region. They are simple unbranched coil tubular glands. Okay, with sweat pores in them, and they help in thermoregulation, temperature regulation में मदद करता है. And they're helping in excretion of water, NaCl, lactic acid, urea, all these things. Okay, how it helps in thermoregulation? बोलो. By excreting materials like NaCl, lactic acid. थर्मोरेगुलेशन में कैसे मदद करता है बेटा? मैम जब पसीना निकलता है तो वो हमें ठंडी का एहसास देता है थोड़ा बहुत गर्मी के समय पे. Yes, very good बेटा. वेरी गुड. एंड ठंडी के दिन में, ठंडी के दिनों में भी ऐसे पसीना निकलता है क्या? नहीं. नहीं मैम. Okay, so this is what is the thermoregulation. Very good बच्चा. Sebaceous glands are the sweat oil glands. Oil glands are making our skin what lubricated all time. ठीक है ना? Oil substance that is called as a sebum. Oily substance को क्या बोला जाता है? Sebum बोला जाता है. It protects the skin from injuries and the infection. Lungs are the respiratory organs. They help in excretion of volatile substance like CO2 and water vapor. And lastly, you have to learn the different types of disorders. Okay. So diabetes mellitus I've discussed. If more amount of albumin is there in the urine, then that is a symptom of albuminuria. Kidney stones are called as renal calculi. So there are different types of stones. Calcium stone, struvite stone, uric acid stone, and cystine stone. Calcium stones may be calcium oxalate or phosphate. Struvite because of infection. Uric acid by uric acid itself, and cystine is because of genetic disorder. You can see different types of stone. So you can see the symptoms. If there is a kidney stone problem, so there will be pain below the rib cage in backside, and there will be change in the urine color and pain and all. And it can be done with the help of diagnosis, can be done with the help of sonography or X-rays or content of uric acid in the blood. Uremia is the excess of urea in the blood, not in urine. Please note down, it is excess of urea in blood, not in urine. It is a symptom of kidney failure. And nephritis is the inflammation of kidney. Okay. Nephritis, any word के अगर आगे itis word है means that organ का inflammation. So nephron का itis मतलब nephron का inflammation. There are two types of renal failure, ARF and acute मतलब जो थोड़े टाइम के लिए होता है और जो ठीक हो सकता है. ठीक है. And chronic मतलब कि जो धीरे धीरे होता है और prolonged रहता है. ठीक है. हेमोडायलिसिस, जब हम ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, that is called as a hemodialysis. Hemodialysis, that is filtering of blood by a dialysis unit. ठीक है. And there is one more, this thing is a figure, and there is a retroperitoneal dialysis in which जो भी अपना fluid है abdominal cavity में जो fluid है, जब उसका drainage होता है, उसका removal होता है, तो उसको हम peritoneal dialysis कहते हैं. You can see all these things. अगर किडनी फेल हो जाएगा तो हम ये डायलिसिस यूनिट से, ये तो होल्डिंग मेजर है बेटा. होल्डिंग मेजर व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट stop the death. For stopping the death, there is only one alternative, that is replacement or transplantation of kidney.
So transplantation can be done with the dead donor, that is called as a cadaveric donor, or a living donor. Living में there can be genetically related or it can be a non-related transplant. You can see how it has been implanted. And that was all about this lesson. So any doubt till here? So this lesson has been completed. Please go through this lesson. All the diagrams are very, very important in this lesson. Practice the diagram. Anyone is having any doubt, you can ask me. किसी को कुछ doubt है, कुछ पूछना है? Yes, किसी को कुछ doubt है, कुछ पूछना है इस lesson में? No, ma'am. No, ma'am. सबको सब आ रहा है? When is your exam? Are you going to college? No ना, सब लोग online ही हो ना अभी? Yes. गए थे कि नहीं कभी college? एक बार गए थे, ma'am. गए थे, फिर से घर पे बैठ गए ना? Yes, ma'am. चलो ठीक है, टेक केयर, ठीक है, एंड फिर से मैं